Good morning students. This is 10th class for math subject. Students, today we will start chapter number 7, ratio and proportion, including properties and its uses. First of all, what is ratio? Ratio is used to compare two quantities. Means two quantities are given, we have to compare that one with the same unit. Here definition is written: if A and B are two quantities of same kind, means they should belong to the same quantity, not quantity but they should have a same kind, means वो एक तरह की होनी चाहिए. if we are considering money, then both the quantities should be belongs to money only and with the same unit same होनी चाहिए. if we will consider kilometer distance, then the both units should be in kilometer, such that B should not is equal to 0. Then the quotient A upon B is also called the ratio between A and B, and it is represented by two dots. Here it is written A ratio B. Two dots are used to it is the sign for representing ratio. So here ratio A upon B has no unit. इनकी कोई यूनिट नहीं होती. Means if A is in kilometer, B is in kilometer can be cancelled, and A upon B has no units. The two quantities A and B are called terms of ratio. A और B क्या है? Terms हैं. The first quantity A is called the first term or antecedent, and second quantity is known as second term or consequent. So in the second term that should not be 0. means A 0 हो सकती है, B 0 नहीं होगी, because in the denominator there should not be 0. So in the both terms of a ratio are multiplied or divided by the same non-zero number and the ratio remain unchanged. अगर हम A को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, सपोज 5 से कर दे, B को भी 5 से कर दे, तो रेशो के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. मीन्स रेशो विल बी सेम. सपोज 3:7, इट इज़ इन लोएस्ट टर्म, देयर HCF इज 1. मीन्स 3 और 7 का HCF क्या है? 1 है. The ratio 4:20 is not in the lowest term. Their HCF is 4 and not 1. तो the ratio must always expressed in lowest term. तो lowest term में हम लिखेंगे, उनकी cancellation हो सकती है if common factor is there. So बच्चे here A ratio B and B ratio A cannot be equal. A रेशो B लिखा है तो B रेशो A नहीं लिख सकते, क्योंकि A रेशो B का मीनिंग है A अपॉन B और B रेशो A का मीनिंग है B अपॉन A, तो दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होंगी. सो लेट अस डू वन एग्जाम्पल हेयर. सपोज हेयर एग्जाम्पल इज गिवन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन 3 marks also. सो 3A plus 2B रेशो 5A plus 3B is equal to 18:29. So find A ratio B. हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? A अपॉन B. So मेथड देखो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इन रेशो, इनको डिवाइड फॉर्म में लिख लो. 3A plus 2B अपॉन 5A plus 3B और 18:29, 18 upon 29. सो बच्चे वी कैन आल्सो हेयर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप. ठीक है, एक दूसरा मेथड वी विल डिस्कस लेटर. देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 29 मल्टीप्लाई बाय 3A plus 2B इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5A plus 3B. 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 27, 87A प्लस 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 58B
18 5 ज़ा 90 plus 18 3 ज़ा 54b. Now you can collect the terms of A on one side and B terms you can collect on another side. So 87A, shift this minus 90A is equal to 54B minus 58B. Up to here I think it is clear. दोनों को माइनस कर दो, सो 90 विल बी ग्रेटर, सो आंसर विल बी इन नेगेटिव फॉर्म. माइनस 3A इस साइड, माइनस 4B. माइनस इज कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स, सो B को रजे डिवाइड कर दो इस साइड पे, A अपॉन B, और 3 विल कम, 3 विल बी डिवाइडेड टू द राइट हैंड साइड, 4 अपॉन 3. सो वी कैन राइट हियर A अपॉन B को लिख सकते हो A रेशो B, और यहाँ पे 4:3. दिस इज द आंसर. इफ दे आर सेइंग कि समटाइम्स A रेशो B इज गिवन, यू हैव टू फाइंड दिस रेशो, उसका राजे अलग नेक्स्ट टाइम बताऊंगी मैं, तो वो दूसरा मेथड आ जाएगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड. सो हेयर क्वेश्चंस आर अप टू हेयर. देन नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ रेशोज. Composition of ratios. First is compound ratio. First is compound ratio. If two or more ratios, the ratio between the product of their first term to the product of their second term is called compound ratios. जैसे सपोज A रेशो B है एंड सेकेंड रेशो इज C रेशो D. इसकी फर्स्ट टर्म और फर्स्ट रेशो की फर्स्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, A मल्टीप्लाई बाय C, तो फर्स्ट रेशो की सेकेंड टर्म B, सेकेंड रेशो की सेकेंड टर्म इज D. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, देन दीज रेशोज आर कंपाउंड रेशोज. ये कौन सी रेशियोज हैं? कंपाउंड रेशियोज. सेकेंड वन इज डुप्लीकेट रेशो. डुप्लीकेट रेशो, इट इज द कंपाउंड रेशो ऑफ टू इक्वल रेशो. डुप्लीकेट रेशो ऑफ A रेशो B, here it is given duplicate ratio of A ratio B is equal to compound ratio of A रेशो B एंड A रेशो B. मीन्स जो भी रेशो है उसी को ही सेम दोबारा रिपीट करके उसकी कंपाउंड बना दो. रेशो A की गिवन होगी, मीन्स जैसे A गिवन है A रेशो B, इट इज़ ओनली सिंगल रेशो, इसी के साथ ही इसी का डुप्लीकेट ले लो. ठीक है, डुप्लीकेट सेम हो गया, तो अब इनको कंपाउंड बना दो. A को A से मल्टीप्लाई किया A स्क्वेयर, देन B को B से मल्टीप्लाई किया B स्क्वेयर. सो A स्क्वेयर रेशो B स्क्वेयर क्या होगी? डुप्लीकेट रेशो. देन ट्रिप्लीकेट रेशो, उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो. A रेशो B, A रेशो B, A रेशो B. तीनों रेशो की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो और तीनों ही रेशो की सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर लो. यू विल गेट A क्यूब रेशो B क्यूब. This ratio is known as triplicate ratio. I think this concept is clear to you. Then sub-duplicate ratio means sub, part. Sub means part. Sub-duplicate, duplicate ratio का part. Duplicate ratio कौन सी है? A square ratio B square. तो इसका for any ratio A ratio B, its sub-duplicate ratio is square root of A ratio स्क्वायर रूट ऑफ B. ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट होगी, जो आपका ट्रिप्लीकेट है उसका क्यूब रूट ले लो. क्यूब रूट ऑफ A रेशो क्यूब रूट ऑफ B इज नोन एज सब ट्रिप्लीकेट रेशो. नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल के नेम से ही अंडरस्टूड है. A रेशो B इज एनी गिवन रेशो, तो उसका A 1/A और रेशो 1/B दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, तो
इफ व्हेन यू विल सॉल्व बी साइड आ जाएगा, ए साइड आ जाएगा, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, सिर्फ इनकी चेंज कर दो, ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए, दैट मीन्स दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल रेशो. So Raje, in this exercise 7a only this concept is there. So Raje, solve 7a by yourself. Thank you and have a nice day.